Good afternoon to all. हेलो, बेटा सभी को आवाज आ रही? हेलो, सभी को आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Okay, so today we discuss the next experiment. Clear? So I just want to show you the lab activity initially. So if you see, so today we discuss okay, this experiment number 8 exactly, and the seventh one will be discussed later on after this. Clear? So today we discuss this experiment, that is write a program of flashing LED connected to port 1 of the 8051 microcontroller. Clear? So in the previous lab we have taken the viva of the 456 experiment as well. Clear? So now I'm going to start. So we have been provided the virtual lab link also for this experiment, as well as the lab demonstration. Kit-based demonstration is also available here. So I'm just going to start. Okay, so is it visible to all of you now? सभी को दिख रहा है बेटा? हेलो, सभी को ये बेटा विजिबल है? Yes, sir. Okay. One more thing I want to make you clear. So I have already submitted the lab manual for this experiment. So submit the write-up within time. Clear? And सभी को मैंने शेयर कर दिया है क्लासरूम पे. You can check it on the classroom. So now I'm going to start. Is it clear? And also all of you kindly mark your attendance as well in this chat box. So let me start first. Okay, so this is the virtual lab link. So by clicking on this, you will go to the platform of the virtual lab. Clear? Related to this experiment. So I have already opened this link. So I will just mold you on the page of that I have already opened. So I think ये सभी को दिख रहा है बेटा? सभी को visible है? देखिए. Is it visible to all of you now? Yes, sir. Okay. So you can see before going to discuss, but some basic info I will give you. This is the virtual lab link. So you can see the objective is very much clear. That is, we will check the blinking of LED that is connected to port 1 of the 8051 microcontroller. Clear? So first of all, we just know about the LED. Clear? So I have already told you all what is LED. So can anyone please tell me what is LED and how it works? Okay, so can anyone please tell me what is LED? बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? Okay, so I will tell you. Okay, so here you can see the theory is given regarding LED. If you see, an LED is a semiconductor device, basically works in forward bias condition of the PN junction diode. It exactly emits light in the visible region here. So basically, when an electric current passes through it in forward bias direction, the amount of light that is produced at the output is directly proportional to the forward current. Clear? You all know the current that will be generated
when when this will be in forward bias condition. Clear? So that is the major concept of this. Is it clear? So जब हमारा एलईडी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो उस केस में आपको पता है फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी सिस्टम में. जब फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी देन योर there will be some energy that is producing to the LED, clear, and that will generate the light output. Clear? So this is the very fundamental thing. Clear? Now going to start the session. Okay. So now if you see यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये सिंबल होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी. यू सी क्लियर, ये आपका सिंबल है एंड दिस इज द स्विच. तो एलईडी में एक एनोड एक एनोड है, एक कैथोड है. ठीक है, तो एनोड वाले पे हमने देखिए एक रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया हुआ है. वी हैव कनेक्टेड ए रेजिस्टेंस थ्रू एनोड while the cathode terminal is connected to with the negative terminal of the battery and the positive side is connected with the switch. So आप देख सकते हैं जब ये स्विच ऑन होगा तो एलईडी विल ग्लो एंड व्हेन द स्विच विल गेट ऑफ द एलईडी विल नॉट ग्लो. क्लियर? सो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. एम आई राइट? तो समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जब ये कनेक्शन के अकॉर्डिंग जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब आप स्विच ऑन करेंगे द कनेक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द सीरीज टू लिमिट द कंट्रोल, तो लिमिट द करंट. क्लियर? सो करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में. ठीक है, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट विल नॉट फ्लो इनटू द एलईडी टू गेट, इसको डैमेज होने से बचाने के लिए वी हैव दिस. क्लियर? Now if we move further, so just showing you the next diagram. So you can see this is the glowing, how the LED glow. Clear? So now we come to the next point. Okay, so if you see next, so this is the basic fundamental principle of work LED. So you can see we have the circuit of normal PN junction diode. Clear? So you can see a holes exist into the P side and electron exist into the N side. When it is forward bias, the hose will get moved through the depletion layer to the N side, while electron will move from N side to the P side and with the by penetrating the depletion layer. So the light will be emitted through the this region. You can see this the depletion region from where the light will get emit. Clear? So okay. So if you see now, okay, so इसके बाद आप लोग देखिए इसमें जो एक मेन कॉन्सेप्ट है फोटोल्यूमिनेंस. इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होता है फॉर जनरेटिंग लाइट. क्लियर? तो जो भी हमारी लाइट जनरेट हो रही है ड्यू टू जस्ट इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल जो हमारा वर्क करता है इसमें. ठीक है, उसकी वजह से द लाइट विल गेट जनरेटेड. नाउ इसके बाद इसमें देख सकते हैं आप लोग ये हमारा कुछ फॉर्मेशन है. जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के टर्म में हम बात करेंगे, देन द electrons come from conduction band to valence band or jumps from conduction band to valence band, then it will release the energy in the form of light. So this is what photon energy that is releases. So this is the forbidden energy gap that will be fulfilled when the electron jump from the higher energy level. This you can see this is the IC diagram of this 8051. Clear? So you can see we have a total number of 40 pins are there. Clear? So we start with this
दिस इज द रीसेट पिन। रीसेट पिन पे आप देख सकते हैं ये हमारी सर्किट कनेक्टेड है। दिस इज द ग्राउंड टर्मिनल, दिस इज द हायर वोल्टेज दैट इज +5 वोल्ट। ये आपका क्या है, दिस इज द कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड। so this is the you can see this is the circuit for to initiate the reset, clear? so reset को initiate करने के लिए हमारा ये circuit है। and then we have the port 1.0 जहां से हमको एलईडी कनेक्टेड है। ये देख लीजिए आप, ये एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, जो कि करंट को लिमिट करने के लिए लगा हुआ है across the LED, and then it is connected to the LED. So it is the LED and this is the supply voltage. ये जो C1 and C2 है along with the oscillator circuit, clear? It will form the oscillator circuit, clear? Here you can see this is the ground signal. So जब ये आपका work करेगा, then this port 19 and 18 will work, clear? And also port 21 is connected with the switch and the ground. You can see 31 is connected with the supply voltage and port 20 is connected with the ground. So this is the major basic connection of this, clear? That is designed on the CAD Soft Eagle tool, clear? So similarly जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, that is the very simple one, that is we just observe the blinking of LED connected to port 1.0. But if you further do it in advance, so you can observe the 7-segment display that is also that may also connected with this 8051 microcontroller, and you can draw the pattern, different pattern from 0 to 9. You can observe with the strips that are exactly forming the 7-segment display. So whenever if you observe 0 to 9 number, then accordingly this strips will blink and you will just verify that it is it 0 or it is 1, it is 2, clear? So you can see this is the table, this is the common cathode terminal, clear? This is the decimal digit. So you can see so जैसे हमें 0 अगर चाहिए तो आपका देख सकते हैं जितने भी ये हमारे ब्लिंक कर रहे हैं ये सारे हमारे हाई होने चाहिए, while G will be 0। G हमारा वर्क नहीं करेगा या ब्लिंक नहीं करेगा। ये जो बीच की स्ट्रिप है ये ब्लिंक नहीं करेगी, बाकी चारों तरफ ब्लिंकिंग होगी। देन यू कैन फाइंड इट इज 1, क्लियर? सो 0। सर हाँ जी, हाँ जी सर कुछ बच्चे वेटिंग में, उनको अलाउ कर दीजिए प्लीज। नहीं, वेटिंग में तो बेटा मैंने सबको अलाउ कर दिया है। सर एक दो बाहर है, मैसेज कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैंने अलाउ किया है। एक बच्चा कोई रोल नंबर 2 करके है, अभिजीत सिंह। आई थिंक ही इज नॉट बिलोंग टू योर क्लास। roll number 2 Abhijit Singh is not belonging to your class, I think so, because we have already entered Abhijit Kumar Singh. Okay sir. Okay, that is someone else other than your class, I cannot allow it. Okay, so ये आपका कुछ 7 सेगमेंट डिस्प्ले हुई है। आप देख सकते हैं अगर हमें 9 चाहिए तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, हमारा पैटर्न ABFG ये ब्लिंक करना चाहिए, C ब्लिंक करना चाहिए, D ब्लिंक करना चाहिए, E will not blink, clear? So you will get the 9। so ये आपका कुछ टेबल है, इस तरीके से फॉर्म हो रही है। now we just see हालांकि हमको 7 सेगमेंट का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें केवल एक सिंपल एलईडी ब्लिंक करानी है पोर्ट 1 से जो कि कनेक्टेड है माइक्रो कंट्रोलर के, क्लियर? बट यू कैन डू दिस आल्सो। नाउ वी कम टू द प्रोसीजर पार्ट, क्लियर? सो प्रोसीजर इज given over here, you can see here, and if you see the procedure part, clear? so दिस इज वेरी मच फंडामेंटल। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारे पास जो कोड गिवन होगा, इस कोड को हम एडिटर विंडो पे कॉपी करेंगे, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, क्लियर? ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पे सारी पिंस पे देख लीजिए कैसे एलईडी कनेक्टेड है हमारी इस पिन पे, ठीक है? और बाकी कनेक्शंस विल बी इंटरनली डन, क्लियर? so this program will be copied and pasted on the editor window, and then if you run this program and debug this program, ये देखिए रन एंड डिबग ऑप्शन नीचे आता है। तो ये आपका प्रोग्राम जब रन करेगा यू विल डेफिनेटली सी हाउ द pattern will form in this, clear?
सो यहाँ आपको पोर्ट भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द, जब डिबग करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाई देगा। क्लियर? सो और आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि जैसे ये आपका जो जो पॉइंट आपके विजिबल लाइट शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपके ऑन कंडीशन में है। क्लियर? दे आर इन ऑल कंडीशन। जैसे P0, ये आपका पोर्ट देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी ये कैसे आपका वर्क करेगा। क्लियर? सो अभी देख सकते हैं आप, आई विल शो यू। ओके, सो नाउ वी कम टू द सिमुलेशन पार्ट। एक मिनट। So just we come to the simulation part now. क्या सभी को दिख रहा है ये? Is it visible properly to all of you now? Hello. Okay, so you can see यहाँ पे हम लोग पहले शो सैंपल डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे देखिए ये हमारे पास आ गया है कोड, इसको हम कॉपी करेंगे। we will copy this code डायरेक्टली। इसको हमने कॉपी कर लिया। यू कैन सी जैसे कि अभी हमने प्रोसीजर पार्ट में देखा भी था, है ये हमने कॉपी, ये 7 सेगमेंट के लिए कोड दिया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल 7 सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट चेकिंग फॉर पोर्ट 1.0 फॉर दिस एलईडी। क्लियर? सो अब जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया, देन वी जस्ट पेस्ट इन दिस एडिटर विंडो। तो ये जो एडिटर विंडो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। क्लियर? पेस्ट करने के बाद इसको आप रन कराएंगे डायरेक्टली। जैसे हमने रन किया, अब ये कह रहा है पोर्ट सिलेक्ट करिए। तो हमने जैसे मान लीजिए पोर्ट, देखिए जब रन कराया तो ये सप्लाई वोल्टेज ऑन हो गया। तो ऑन होने का मतलब यहाँ पे लाइट ग्लो करने लगी। ठीक है, सप्लाई आपकी कनेक्ट हो गई। पोर्ट 1 हमने कनेक्ट किया, तो अब देखना है कि ये पोर्ट 1 पे क्या हमारा, अगर पोर्ट 1 हमारा सिलेक्ट हो गया है तो पोर्ट 1 पे जो एलईडी कनेक्टेड होगी वो ब्लिंक करेगी। तो वो यहाँ पे भी आपको दिखना चाहिए पोर्ट पे। ये पोर्ट 1.0 आपका ग्लो करना चाहिए, जो कि अभी दिखेगा माइक्रो कंट्रोलर पे। और यहाँ पे ये P1.0 भी, जो एलईडी कनेक्टेड टू पोर्ट 1 दिखा रहा है आपको, ऊपर देख सकते हैं यहाँ एलईडी कनेक्टेड टू पोर्ट 1.0 विल ग्लो, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, जब मैं इसको पोर्ट 1 सेलेक्ट किया और इसको मैं अब डीबग करता हूँ, तो देखिए डीबग करते ही हमारा ये पहली वाली जो लाइन थी वो हमारी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हो गई, जिसमें दिख रहा है पोर्ट 1.0 और एलईडी कनेक्टेड टू पोर्ट 1.0 विल ग्लो। सभी को दिख रहा है ये? इज इट विजिबल? यस सर। हेलो, ये आप देख सकते हैं ये लाइट हमारी ग्लो कर रही है। जी वाला पोर्ट हमारा ये जो है पॉइंट ग्लो कर रहा है। और आप यहाँ पे अगर माइक्रो कंट्रोलर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई वोल्टेज तो हमारी हाई होगी, बिना सप्लाई के तो ऑन ही नहीं होगा। तो +5 वोल्ट सप्लाई आपकी ग्लो कर रही है। और पोर्ट 1.0 जो कि हमने पोर्ट 1 यहाँ सिलेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग पोर्ट 1.0 हमारा यहाँ पे ग्लो कर रहा है। बाकी देखिए इसका मतलब क्या है, पोर्ट 1 आपका ऑन हो गया, पोर्ट 1 इज इन ऑन कंडीशन। तो जो आपकी एलईडी है वो ग्लो कर रही है, वो उसका आप यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मार्क है, इसका मतलब है पोर्ट 1 आपका ग्लो कर रहा है। ये देखिए एलईडी कनेक्टेड टू पोर्ट 1.0 विल ग्लो। क्लियर? सो आपका ये आपका वर्चुअल लैब एक्टिविटी है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सो चूंकि एक ही पोर्ट ग्लो कर रहा है, एक ही एलईडी होगी, ये आप देख सकते हैं जी वाला पॉइंट हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है, बाकी सब ऑफ कंडीशन में है। नाउ सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए इसको रीसेट कर देता हूँ, सपोज आई एम सिलेक्टिंग पोर्ट 2 राइट नाउ। क्लियर? अगर मैं पोर्ट 2 सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, सपोज आई जस्ट सेलेक्ट द पोर्ट 2। क्लियर? सो सपोज आई एम सेलेक्टिंग पोर्ट 2 नाउ, सो एंड देन debug दिस। सो देखिए पोर्ट 1 देन पोर्ट 2.6, port 2.6 is also blinking now, so the LED connected to port 2.6 will glow। ठीक है, तो 2.6 से जो एलईडी ग्लो कनेक्टेड है वो हमारी ग्लो कर रही है। देखिए 2.6 से भी हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये वाला स्ट्रिप आपका ऑन हो गया। ऐसे ही ये चीज हम लोग 7 सेगमेंट में भी कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू डू दिस फॉर 7 सेगमेंट,
ये 7 सेगमेंट के लिए नीचे कोड दिया हुआ है। इस कोड को आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना है, ये आप देख भी सकते हैं, 7 सेगमेंट इंटरफेस विथ 8051। क्लियर। इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा सिंपल पोर्ट 1 के लिए है। एक मिनट में इसको रीसेट कर रहा हूँ। नॉट रीसेट राइट नाउ। ओके, नो इशू। आप डायरेक्टली मान लीजिए मैं ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ यू कैन चेक दिस को मैं पोर्ट 1 सिलेक्ट कर देता हूँ, पोर्ट 0 कर देते हैं। नाउ रन दिस प्रोग्राम। सो जब रन करा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न आ रहा है। नाउ डीबग दिस। तो देखिए जीरो, जीरो का मतलब क्या है, पोर्ट 0 का मतलब है, सपोज हमें ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, दिस विल फॉर्म द जीरो पैटर्न। जीरो दिख रहा है तो जीरो का मतलब देखिए यहाँ दिखाएगा पोर्ट 0.1, पोर्ट 0.2, पोर्ट 0.3, पोर्ट 0.4, पोर्ट 0.5, पोर्ट 0.6 विल ग्लो। क्लियर। तो जो भी आउटर वाले हैं सब ग्लो कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम इससे आपका जीरो पैटर्न फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिख के भी आ रहा है टू डिस्प्ले जीरो, डिस्प्ले आपका जीरो हो रहा है और डिस्प्ले जीरो दिखा रहा है। क्लियर। ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं ACFEF, ठीक है। ये हमारे फॉर्म कर रहे हैं ACEF। क्लियर। अकॉर्डिंग विद दी। अब मान लीजिए इसको मैं पोर्ट 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज आई एम जस्ट सेलेक्टिंग पोर्ट 1 नाउ। इसको मैं डीबग करता हूँ, एक मिनट रन करा लेते हैं। सो सिमिलरली इट इज, ये 1 आपका डिस्प्ले होना चाहिए, 1 मतलब ये स्ट्रिप आपकी ब्लिंक करनी चाहिए। इट इज नॉट ब्लिंकिंग, सम इशू विल बी देयर, आई थिंक सो। एक मिनट, इसको रीसेट करते हैं, पोर्ट 1 के लिए देखते हैं। सम इशू इज देयर, तो नाउ वी कम टू पोर्ट 2 पे देख लेते हैं। कुछ इसमें एक्चुअली दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रॉपरली सपोर्टिंग दिस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग ऑल द पैटर्न। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमने जीरो के लिए आपको दिखाया था, similarly you can do this. Actually it is not working for all 7 segments or the characters counting. So खैर हमारा जो एक्सपेरिमेंट था that was to verify the blinking of LED connected to port 1 only, not justify the 7 segment. For example, I have just shown you. Okay, so this was the virtual lab based experiment. Now if you come to the demonstration, lab demonstration, that is also available. So video is also available. So I am just showing you the video also related to this. Clear? तो एक वीडियो है, मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग देखिए और get how we can do into the lab also. And also you all are requested to mark your attendance in this. Clear? So just wait, I am showing you the file. वीडियो में आपको शो कर रहा हूँ, जस्ट वेट। इसको देखिए आप लोग, ठीक है। That is based on the microcontroller. Basically, the objective is to write a program of flashing LED connected to port 1 of the microcontroller. Clear? So we will just write a program for the flashing LED to means LED will get flashed if it is connected to port 1 of the microcontroller. So this you can see, this is the program basically. Now this is the circuit for this. You can see this, we have a 8051 microcontroller in the block. Basically we have the ports P1.0 and P3.3. So P3.3 is connected to the switch, and P1.0 is basically connected with a resistance of 330 ohm, and it is again connected with the positive terminal is connected to the resistance, and the
of the LED and the negative is to the reference node. Here. So, and if you see, this is the microcontroller kit basically. So it is exactly NVIS 5000A8051. That is the microcontroller. You can see in this microcontroller, it consists on the board. It consists basically, this is the keyboard from where we perform the typing of the instruction. This is the display where you can see the outputs also, whatever we are typing over here. This is what toggle switch. If you turn it on the upper mode, it will connect it with the PC. And if it is suppose downward mode, so it is now connected with the keypad mode. Means when if you perform it through, if you perform the instruction through the computer or PC, then you will turn it on the PC mode. So now this is the USB you can see where you can connect it through the laptop or through some other computer device to give the instructions. Now you can see this is the supply. The power supply is exactly plus 12 volt DC. You can see we have the DC supply of plus 12 volt, then plus 5 volt, then minus 12 volt and minus 5 volt. This is the reference terminal where we perform the ground connection. Now, this is the microcontroller basically. Sorry, this is the IC. You can see this is 40 pin IC and microcontroller unit is there, 8051 family. And then we have some ports like this. You can see this is port 0, port 1, port 2, port 3. Yeah. Now we just going to start the demonstration of this, how we can get the flashing LED. The LED will get flashed when it is connected to port 1. So you can say this is the resistance of 300 ohm. And this is connected with the port 1, as we have seen in the objective. Is connected with the port 1, and the second terminal of this LED, that is the negative terminal, is connected with the ground, that is the reference terminal. Now starting the demonstration. Just देखिए इस प्रैक्टिकल में जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनर किट की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनर किट है 8051 और ये एटमल करके 8051 ये आपकी आईसी है। ठीक, आपका ऑब्जेक्ट है फ्लैशिंग एलईडी। ठीक, तो ये आपकी एलईडी है। एलईडी में दो लेग हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव लेग पे हम 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं और निगेटिव लेग को हम ग्राउंड कर दिए हैं। ठीक, ये कनेक्ट हो गया। अब आपका 1 मिनट सर, ये निकल जा रहा है। ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे करते हैं तो ये टॉगल स्विच जो है पीसी मोड की तरफ कर दिया जाता है। ठीक, और जैसे इसकी में जो इनबिल्ट कीबोर्ड है उससे अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो टॉगल स्विच को डाउन कर दिया जाता है कीपैड मोड में। ठीक, ये है। और प्रोग्राम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये टॉगल स्विच, इधर वाला टॉगल स्विच वो प्रोग्राम मोड पे रहे प्रोग्राम टाइप करते समय। ठीक, अब ये आपका एलसीडी डिस्प्ले है। इसमें देखिए प्रेस पी फॉर पीसी, जो हमने बताया कि जब आप कंप्यूटर के थ्रू करेंगे तो इस टॉगल स्विच को पीसी मोड पे प्रेस करेंगे, पीसी मोड की तरफ करेंगे, उसके बाद आप पी प्रेस करेंगे। और यदि अगर इस कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं
तो उसके लिए हम इस टॉगल स्विच को कीपैड मोड की तरफ करेंगे और प्रेस एन करेंगे, तो ये जो है उसको इस कीबोर्ड से इंटरफेस करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इंटरफेस होने में इस कीबोर्ड को। ये अब आपका Now you can see the blinking operation, blinking of LED is now closed as it has get the data on the display. Okay. अब यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। जैसे 00 पे क्या है मेरा 74, तो 74 यहाँ पे हम टाइप करेंगे और नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बटन प्रेस करने से क्या होगा कि ये 00 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पर 74 स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट एड्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक, अब 1 पे क्या है 00 हमने टाइप किया, नेक्स्ट बटन प्रेस किया। फिर 2 पे क्या है F5 टाइप किया और नेक्स्ट बटन प्रेस किया। 3 पे क्या है 90 बटन 90 डाटा देखिए डिस्प्ले हो रहा है। अगर वही डाटा जो मैनुअल में डाटा है और वही डाटा अगर डिस्प्ले हो रहा है तो आप नेक्स्ट बटन प्रेस करते जाइए। हो गया। फिर 4 पे क्या है आपका 04 मैनुअल में भी है, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस कर दीजिए। फिर 5 पे आपका 12 है, नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका 18 है, ये नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 73 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आप 08 पे क्या है 12 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 18 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 73। So you can see the data from the table is verified on this kit also by pressing the next button. फिर आप नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। बी पे क्या है आपका 12 है तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका सी पे है 18 प्रेस करिए, नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका 73 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। ई पे क्या है 12 यहाँ डिस्प्ले है तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 18 है, 18 पे आप नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 73 भी डिस्प्ले है मैनुअल और एलसीडी पे सेम, तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका 11 पे B2 है, B2 भी है, नेक्स्ट बटन। ठीक, फिर 90 भी आप डिस्प्ले हो रहा है तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 13 पे आपका 80 है, 80 फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 14 पे आपका F0 है। F0 टाइप करने के बाद फिर एक नेक्स्ट बटन प्रेस करिएगा ताकि F0 14 पे स्टोर हो जाए। कर दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये फीड बटन प्रेस करेंगे। फीड बटन प्रेस करने से ये प्रोग्राम आईसी के अंदर बर्न होके स्टोर होगा। अब देखिए प्रोसेस हो रहा है आईसी के अंदर प्रोग्राम। ठीक, प्रोग्रामिंग डन करके डिस्प्ले हुआ। इसमें लिखा है टॉगल स्विच टू रन एंड प्रेस आर, मतलब अभी तक प्रोग्राम मोड पे था, अब हम इसे रन मोड में करेंगे और देन प्रेस आर। अब देखिए आपका ये एलईडी ब्लिंक करने लगा। ये आपका रहा प्रैक्टिकल नंबर 7। So you can see the LED is flashing now when it is connected to port 1 of the microcontroller. So this is how we have performed the experiment. Thank you.
Hello. So this was the video, lab demonstrated video that is performed into the college laboratory. Clear? So so ये सभी को समझ में आया अभी जो मैंने शेयर किया था? हेलो, आवाज आ रही सभी को? यस सर। ये वीडियो और ये जो भी अभी हमने आपको वर्चुअल लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाया, ये दैट इज शेयर्ड ऑन योर क्लासरूम। सो वहां से आप लोग इसको अगेन एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल लैब तो आपका लैब एक्टिविटी में भी अवेलेबल है लिंक, so you can go through from there and इसके अलावा इसमें अभी किसी को डाउट जो भी हमने इसमें बताया है कैसे ये हमारा वर्क करेगा? Okay, so we also have a video for basically you can see that is performed on the software. Clear? So that is Simulink software is there जिसपे ये हुआ। ये तो अभी हमने किट बेस आपको शो किया था, उससे पहले वर्चुअल लैब पे दिखाया कैसे इसको हम डन करते हैं। We also have the video related to the software base. Clear? So जिसपे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको रन कराते हैं। एक और वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। So actually we don't have, actually the time is going to over for the session. So if you all join again, then I will show you that. Clear? Anyone have any doubt? Okay, so one more thing I want to make you all clear. So there is a students can involve for the demonstration of the experiments physically by coming to the college. College is open now and hello. Hello. हेलो बेटा, सभी को आवाज आ रही है मेरी? मैं ये कह रहा हूँ कॉलेज में आके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं and the college is open, so and LILTs are available into the lab. So if you come to the college and want to do the experiment, so you may come. Clear? The information is also provided to you all. That is applicable for all the years, second year, third year, and final year. So students are coming, and if you all are also come, you may come and you can do the experiments performed over here. Clear? So I think the session is going to disconnect. So I request you all to kindly rejoin the session so that I can show you the video again. Clear? And the related manual I have shared you into the Google Classroom. So this is exactly your experiment number 8, not 7. So 7th experiment will be